رب کے یہ ہیں نیک بندے، راضی رب کو یہ کرے، دینے والا ہاتھ ان کا کام جو بھی یہ کرے۔ اللہ والے، اللہ والے، اللہ والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو بندہ 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو بندہ 100 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اسے شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اللہ والوں کے پیشے۔ اللہ والے مختلف پیشے اختیار فرماتے رہے جس کے ذریعے رزق حلال کماتے رہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ جو شخص لگاتار حلال روزی کماتا ہے اور حرام کے لقمے کی آمیزش نہیں ہونے دیتا، اللہ پاک اس کے دل کو اپنے نور سے روشن فرما دیتا ہے اور حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری فرما دیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کسی بزرگ نے فرمایا جب آدمی حلال غذا کا پہلا لقمہ کھاتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو شخص رزق حلال کمانے کے لیے کسی ایسی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے جو ذلت کی جگہ ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے پیشوں کی بات کی جائے تو انبیاء کرام علیہ السلام نے مختلف پیشے اختیار فرمائے ہیں۔ ایک پیشہ بکریاں پالنا بھی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے زمانے میں پیداواری اور کارخانے اور مشینیں اتنی زیادہ ہیں کہ تمام دوسری چیزیں ماند پڑ گئی ہیں، لیکن آج بھی انسانی زندگی کی پیداوار کا ایک بہت بڑا حصہ جانور پالنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ والوں کے پیشوں کی اگر بات کی جائے تو انبیاء کرام علیہ السلام کے پیشوں میں مختلف پیشے آپ کی سیرت میں ملتے ہیں۔ جانور پالنا یہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا پیشہ رہا ہے۔ جی ہاں، قرآن پاک میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کے شر سے بچنے کے لیے اس کی حدود سے باہر مدین جانے کا ارادہ فرمایا۔ مدین وہ مقام ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ یہ مصر سے 8 دن کی مسافت پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ تو سواری تھی اور نہ ہی آپ نے راستہ دیکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کو راہ دکھانے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا جو آپ کو مدین لے گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو اس وقت دھوپ تھی، گرمی تھی، اور آپ نے کئی روز کا سفر کیا تھا، بھوک بھی تھی، پیاس بھی لگی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام شہر کے کنارے باہر جہاں ایک کنواں تھا وہاں تشریف لائے، جہاں سے لوگ پانی لیتے تھے، اپنے جانوروں کو بھی پانی پلاتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی نظر پانی پلانے والے لوگوں سے علیحدہ دور کھڑی 2 عورتوں پر پڑی جو اس انتظار میں تھیں کہ لوگ پانی پلا کر فارغ ہوں تو وہ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ یہ دونوں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ ہم اپنے جانوروں کو یہاں پانی پلانے کے لیے آئی ہیں، لیکن ہم لوگوں میں جا کر، مردوں میں جا کر پانی نہیں پلا سکتی۔ جو لوگ پانی پلاتے ہیں اس کا جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے وہ اپنے جانوروں کو پلا دیتی ہیں۔ ہمارے والد بہت ضعیف ہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں پانی پلانے کے لیے خود آنا پڑتا ہے۔ ان کی باتیں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جو اس کنویں کے قریب ایک دوسرا کنواں تھا جس کے اوپر بڑا بھاری پتھر تھا اور وہ پتھر کئی افراد مل کر ہلاتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہا ہی وہ پتھر اٹھایا اور اٹھا کر سائڈ پر کر دیا اور اس کنویں سے پانی نکال کر حضرت شعیب علیہ السلام کی جو صاحبزادیاں تھیں، ان کے جو جانور تھے، ان کو پانی پلایا۔ وہ صاحبزادیاں
واپس گھر تشریف لے گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں قریبی کسی درخت کے پاس بیٹھ گئے۔ جب وہ دونوں صاحبزادیاں عام وقت سے پہلے گھر تشریف لے گئیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آج جلدی کیسے آ گئیں؟ تو آپ کی جو صاحبزادی تھی انہوں نے واقعہ بتایا کہ وہاں ایک شخص ملا جس نے ہماری مدد کی اور دوسرے کنویں سے ہمارے جانوروں کو پانی پلا کر ہمیں جلدی آنے کا موقع مل گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آدمی کو میرے پاس بلا لاؤ۔ آپ کی بڑی صاحبزادی صفورہ وہ تشریف لے کر گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنا چہرہ آستین سے چھپائے یعنی پردہ کیے ہوئے اور اپنے جسم کو چھپائے ہوئے شرم سے چلتی ہوئی آئیں اور کہا کہ میرے والد جو ہیں وہ آپ کو طلب فرما رہے ہیں تاکہ آپ کو جانوروں کو پانی پلانے کی مزدوری پیش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جانوروں کو پانی پلانے کی مزدوری نہیں لوں گا، لیکن میں ان کی زیارت کے لیے چلتا ہوں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت کے لیے آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لے آئے۔ قرآن پاک میں جو یہ واقعہ پیش ہوا ہے وہ کس انداز میں پیش ہوا ہے سنیے۔ ان میں سے ایک نے کہا اے میرے باپ ان کو ملازم رکھ لو، بے شک آپ کا بہتر وہ نوکر ہوگا جو طاقتور اور ایماندار ہو۔ انہوں نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس مہر پر تمہارا نکاح کر دوں کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کرو تو وہ اضافہ تمہاری طرف سے ہوگا، اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، انشاءاللہ عن قریب تم مجھے نیکوں میں سے پاؤ گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے ان میں سے ایک نے کہا اے میرے باپ ان کو ملازم رکھ لو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے عرض کیا ابا جان آپ انہیں اجرت پر ملازم رکھ لیں کہ یہ ہماری بکریاں چرایا کریں اور یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے۔ بے شک اچھا ملازم وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سے پوچھا کہ تمہیں ان کی قوت کا ان کی ایمانداری کا کیسے علم ہوا؟ صاحبزادی نے عرض کی قوت تو اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے تنہا اس کنویں پر سے وہ پتھر ہٹایا جس پتھر کو 10 سے کم آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے، اور امانت اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھ کر سر جھکا لیا، نظر نہ اٹھائی اور ہم سے کہا کہ تم پیچھے چلو کہ کہیں ہوا سے تمہارا کپڑا اڑے اور بدن کا کوئی حصہ نمودار ہوئے۔ یعنی آپ علیہ السلام نے اپنی طاقت کا جو مظاہرہ کیا، یعنی جو پتھر اٹھا کر دوسرے کنویں سے آپ نے سائیڈ پر رکھا تو وہ پتھر جو تھا 10 افراد کم از کم اٹھاتے تھے۔ اور پھر امانت داری کا کیسے پتہ چلا کہ جب آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، آپ خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے آپ کی صاحبزادیوں کو فرمایا کہ تم لوگ میرے پیچھے آؤ، تم دونوں میرے پیچھے آؤ، تاکہ کہیں اللہ نہ کرے کہیں ہوا سے تمہارے بدن سے کپڑا اڑے اور کوئی بدن کا حصہ نظر آئے۔ تو یوں آپ کی طاقت کا اور امانت داری کا اظہار ہوا۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح اس مہر پر تمہارے ساتھ کروں کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو، اور پھر اگر تم 10 سال پورے کرو تو یہ اضافہ تمہاری طرف سے مہربانی ہوگی اور تم پر واجب نہ ہوگا، اور میں تم پر کوئی اضافی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جانور پالنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا آپ نے بھی بکریاں چرائیں؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں میں نے بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قرات کی تنخواہ پر چرائی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بکریوں نے حاضری دی، بکریوں نے صحبت پائی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یعنی بکریاں چرانے والا جو ایک عمل ہے یہ بھی آپ نے اختیار فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بکریاں چرانا یہ اس کی مزدوری بھی حلال پیشہ ہے، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ بکریوں پر گائے، بھینس، بھیڑوں، اونٹوں کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ان کو بھی مزدوری پر چرانا درست ہے اور جائز ہے۔ ہر نبی علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں۔ اس میں حکمت کیا ہے کہ بکریوں پر رحم اور شفقت کرنے کی ابتدائے عمر سے ہی عادت ہو، اور پھر جب اپنی امت کی طرف وہ اللہ پاک کا پیغام لے کر جائیں تو وہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ بنی نوع انسان کی اپنی امت کی قیادت کرنے سے متعارف ہو جائیں۔
बकरियों पर रहम शफकत करना ये अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की तरबियत के लिए था। अब देखें कि बकरियां जो हैं उनको चराना आसान तो नहीं है, और बाज़ का होता है कि बकरियां जो हैं वो रेवड़ से निकल के भाग जाती हैं, फिर उनको पकड़ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, इस तरह एक बकरी आपके रेवड़ से भागी तो आप अलैहिस्सलाम काफ़ी उसके पीछे भागते रहे, और जब वो आपने उसको पकड़ा और फरमाया कि खुद भी थकी और मुझे भी थकाया। तो ये एक समझ लें कि अपने अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की तरबियत के लिए अल्लाह पाक ने एक उनके दिल में डाला, उनमें मतलब ये एक काम उनके सुपुर्द किया कि वो बकरियां चराया करते थे। पता चला कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी जो हैं ये चंद किरात मजदूरी पर बकरियां चराया करते थे। अब यहाँ वो हजरात जो मेहनत मजदूरी करने को आर समझते हैं, रिज़्क़े हलाल कमाने में अगर कोई तकलीफ़ वाला काम है, मुशक्क़त वाला काम है, मजदूरी है, मेहनत है, तो वो उससे तंग होते हैं। तो उनको गौर करना चाहिए कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कि अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के इमाम हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी थोड़ी मजदूरी पर आपने ये मुशक्क़त वाला काम फरमाया। और वो अफराद जो बेकार बैठे रहते हैं, जो कोई मेहनत मजदूरी वाला काम नहीं करते और इंतहाई बेशर्मी के साथ, बेहयाई के साथ वो नाजायज़ कामों में पड़ जाते हैं, मतलब ना करने वाले कामों में पड़ जाते हैं, माज़अल्लाह को चोरी चकारी में पड़ जाते हैं, डकैती में पड़ जाते हैं, लोगों से माल छीनना झपटना ये इख्तियार करते हैं, रिज़्क़े हलाल कमाने में उनको आर महसूस होती है, उनको गौर करना चाहिए। मेरे आका करीम सरवर अंबिया जो तमाम नबियों के सरदार हैं, अल्लाह पाक के महबूब हैं, आपने मजदूरी की तो किसी की क्या हकीकत है कि जो मजदूरी को आर समझे। मुसलमान हमारे यहाँ हमारे मुआशरे में बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो मेहनत मजदूरी को जो है वो आर समझते हैं, उससे मेहनत मजदूरी करने से कतराते हैं। और मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, यानी वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जो मेहनत मजदूरी को आर समझे, जो मेहनत करने से जी चुराए। और बाज़ तो ऐसे बेहया होते हैं जो भीख मांग कर गुजारा करते हैं, यानी भीख मांगने का पेशा इख्तियार करते हैं, लोगों के आगे हाथ फैलाना, लोगों के आगे अपना हाथ फैलाकर वो मेहनत से, मजदूरी से, रिज़्क़े हलाल से जान छुड़ाकर लोगों के आगे हाथ फैलाकर सवाल कर कर माल कमाते हैं। तो ये लोग भी जो है इनको भी शर्म महसूस होनी चाहिए। अच्छा, इस हदीस पाक से ये भी मालूम हुआ कि जानवर चराना यानी जानवर पालना, उनकी देखभाल करना ये हलाल पेशा है। हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन हुसैन जिक्र करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास बकरियां थीं जो ओहद पहाड़ के पास दिन में चरती थीं और रात के वक्त में आपके घर के गिर्द फिरती थीं। एक बकरी जिसका नाम कमर था, एक दिन आपने ना पाया, आपने मालूम किया कि क्या हुई। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि वो बकरी कहाँ गई। अर्ज़ की गई मर गई। इरशाद फरमाया तो उसका चमड़ा क्या हुआ। तो कहा गया हुजूर वो तो मर गई थी। इरशाद फरमाया मुर्दा की खाल दबागत से पाक हो जाती है। तो पता चला मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बकरियां पाला करते थे। मदनी चैनल के नाजरीन, पाकिस्तान में लाइव स्टॉक यानी जानवर पालना, ये इस शोबे के तहत जानवरों की मुख्तलिफ अक़साम शामिल हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, खच्चर, घोड़े, गधे, मुर्गियाँ वगैरह। बिलखसूस ज़ुल्हिज्जा के महीने में जब कुर्बानी का मौका होता है तो उस वक्त ये बिज़नेस अरूज पर होता है। मखसूस जानवर को मखसूस वक्त में अल्लाह पाक की रज़ा के लिए कुर्बान करना ये कुर्बानी कहलाता है। और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है जो इस उम्मत के लिए भी बाकी रखी गई है। अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी कुर्बानी का हुक्म इरशाद फरमाया, और हुक्म शरीयत पर अमल करते हुए मुसलमान हर साल अल्लाह पाक की रज़ा के लिए, हुक्म शरीयत पर अमल करते हुए रज़ाए इलाही के लिए कुर्बानी देते हैं। ना सिर्फ उखरवी फ़वाइद हासिल होते हैं बल्कि इस कुर्बानी से बहुत सारे दुनियावी फ़वाइद भी हासिल होते हैं। मवेशी मंडी होती है, मवेशी मंडी में बेचने वाले लोग जो हैं वो अपने घरों में, बाड़ों में, कैटल फार्म्स में जानवर पालते हैं और फिर उनको कुर्बानी के मौका पर मंडियों में लेकर आते हैं। इस तरह जानवरों की देखभाल करने के लिए कसीर तादाद में अफराद जो है मुलाजिम रखे जाते हैं जिनका रोज़गार कुर्बानी की सुन्नत की बरकत से चलता है। इन जानवरों को मवेशी मंडी में पहुंचाने के लिए गाड़ियां, कंटेनर, बस, ट्रक वगैरह, उनका रोज़गार कुर्बानी के मौका पर चलता है। हज़ारों लोग उससे कमाते हैं। जानवर ले जाने वाली गाड़ियां मुख्तलिफ मकामात पर टूल टैक्स देती हैं। मंडियां जहां होती हैं, मंडियों की जो जगह होती है उसमें किराया होता है। तो यूँ मुल्क के लिए
खूब सरमाया जमा होता है, मुल्की ख़जाने को उससे फ़ायदा हासिल होता है और मुल्क भर में मौजूद मवेशी मंडियों में मजमूई तौर पर लाखों लोगों का, लाखों अफराद का चूल्हा जो है वो चलता है। मंडियों में मौजूद खाने पीने के स्टॉल होते हैं, होटल, चाय, पानी, चारा, झोल वगैरह बेचने वाले होते हैं, उनका रोज़गार इस सुन्नत की बरकत से चलता है। मंडियों से लोग जानवर ख़रीद कर घरों को लेकर जाते हैं, तो उसमें फिर जो छोटे ट्रांसपोर्टर होते हैं, चिंची वाले, रिक्शे वाले, पिकअप वाले, सुजुकी वाले, उनका रोज़गार, उनका बिज़नेस इससे चलता है, उनका रोज़गार चलता है। अच्छा, फिर ये गाड़ियाँ जो हैं मुख्तलिफ़ पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाती हैं, उसका भी फिर फ़ायदा होता है। और कुर्बानी के अयाम में शहरों में जगह ब जगह लोग चारा और जो जानवरों के खाने की खुराक की चीज़ें होती हैं वो सेल करते हैं, उससे उनका रोज़गार चलता है। इसी तरह ईद के मौका पर हज़ारों कसाब जो हैं वो जानवर ज़बह करने और कीमा करने, गोश्त करने वगैरह की खिदमत अंजाम देते हैं, इससे उनका रोज़गार चलता है। और फिर कुर्बानी के बाद जो कुर्बानी की खालें होती हैं, कुर्बानी की खालों को नमक लगाने वाले, उनका एक पूरा एक अलग से डिपार्ट है। फिर खालों को दबागत के बाद जब प्रोसेस के लिए भेजा जाता है तो पूरी एक फील्ड है जो इस फील्ड में बिज़नेस करती है, यानी जानवरों की खाल से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती हैं और फिर वो चीज़ें बैरून मुल्क भेजी जाती हैं, बेची जाती हैं। तो इससे भी कसीर ज़र मुबादला जो है वो पाकिस्तान आता है, हमारे मुल्क अज़ीज़ में आता है। यानी चमड़े से बनने वाली चीज़ें जो बाहर मुल्कों में एक्सपोर्ट की जाती हैं, तो उससे भी जो ज़र मुबादला हासिल होता है उससे भी मुल्क तरक्की करता है। यानी अलगर्ज़ जानवर की पैदाइश से लेकर कुर्बानी तक इस अजीम सुन्नत पर अमल करने की बरकत से लाखों अफराद के लिए रोज़गार के मौके पैदा होते हैं। और ये काम शुरू हुआ था कहाँ से? जानवर पालने से। आपने देखा कि जानवर पालने वाला काम कितना बरकत वाला काम है। आइए चंद अहादीस मुबारका मैं अर्ज़ करता हूँ। मदनी चैनल के नाज़रीन, जानवर पालना बड़ा बरकत वाला काम है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद, आपने फरमाया, ऊँट रखने वालों के लिए ऊँट बाइस इज़्ज़त और बकरियां बाइस बरकत हैं। घोड़ों की पेशानी में क़यामत तक खैर रख दी गई है। मदनी चैनल के नाज़रीन, जानवर पालना एक पेशा है। अब इस पेशे में भी बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें शरई लिहाज रखना चाहिए। बाज़ लोग क्या करते हैं, एक बंदा जानवर ख़रीदता है, पालने के लिए किसी दूसरे को दे देता है, और वो जो जानवर होता है उससे अगर बच्चे पैदा होते हैं तो दोनों आधे आधे डिवाइड कर लेते हैं। बकरी ने 2 बच्चे दिए हैं तो एक बच्चा जो मालिक है उसका और एक बच्चा जो है जो पालने वाला है उसका। तो ये ऐसा अमल जो है ये नाजायज़ है, ये काम जो है यूँ ये नाजायज़ है। इसके हवाले से शरई रहनुमाई क्या है सुनिए। क्योंकि जानवर जो है वो दोनों का मुश्तरक नहीं है, बल्कि जानवर का मालिक एक शख्स है जबकि पालने वाला, निगहदाश्त करने वाला वो दूसरा शख्स है। शरई उसूलों के मुताबिक यह इजारा फासिद है और इस सूरत में पालने वाले को अपनी मलकियत से खिलाए गए चारे की कीमत और उजरत मिसल, जो अमूमन आम तौर पर इस काम के लिए उजरत दी जाती है, वो मिलेगी। और जितने बच्चे पैदा होंगे वो सब बच्चों का मालिक जो है वो जानवर का मालिक होगा। अच्छा मदनी चैनल के नाज़रीन, इसके जायज़ होने की सूरत यह है कि जानवर का मालिक जानवर का आधा हिस्सा पालने वाले शख्स को एक मुअय्यन रकम पर फ़रोख्त कर दे और रकम की अदायगी की मुद्दत तय कर ले। मसलन जानवर का निस्फ दूसरे को 20,000 में बेच दिया और 20,000 की अदायगी 6 महीने बाद वो करेगा। अगर जानवर का मालिक चाहे तो अपनी मर्जी से यह रकम बाद में मुआफ़ भी कर सकता है। तो यूं जानवर दोनों के दरमियान मुश्तरक हो जाएगा, यानी आधा मालिक का आधा पालने वाले का। इस सूरत में वो जानवर और उसके पैदा होने वाले बच्चे सब दोनों के दरमियान मुश्तरक होंगे और ये आधे आधे जानवर तकसीम कर लेंगे। ये तरीका इख्तियार करने से दोनों का मकसूद हासिल हो जाएगा। जबकि जो सवाल किया गया उसमें यह कहा गया था कि जानवर जो है बच्चे देता है तो वो मालिक का ही, आधा मालिक का आधा पालने वाले का, वो पालने वाले की मजदूरी के तौर पर। तो ऐसा नहीं, बल्कि पालने वाले को भी वो मालिक कर दे, आधे का खुद मालिक, आधे का आधा जो है वो पालने वाले को उसको मालिक कर दे, और जो बच्चे हैं वो फिर आपस में आधे आधे तकसीम कर दें। सदर शरिया बदर तरीका मौलाना मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, गाय भैंस खरीद कर दूसरों को देते हैं कि उसे खिलाए पिलाए, जो कुछ दूध होगा दोनों में निस्फ निस्फ तकसीम होगा। ये इजारा भी फासिद है। कुल दूध मालिक का है और दूसरे को उसके काम की उजरत मिसल मिलेगी, और जो कुछ अपने पास से खिलाया है उसकी कीमत मिलेगी, और गाय ने जो कुछ चरा है उसका कोई मुआवजा नहीं, और उस दूसरे ने जो कुछ दूध सर्व कर लिया उतना ही दूध मालिक को दे कि दूध मिसली चीज़ है। इसके जवाज़ का तरीका ये बयान करते हैं सदर शरिया रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, इसके जवाज़ की ये सूरत हो सकती है कि गाय, बकरी, मुर्गी वगैरह में आदि दूसरे के हाथ बेच डालें। अब चूंकि इन जानवरों में शराकत हो गई, यानी आधा मालिक का आधा पालने वाले का हो गया, तो बच्चे भी मुश्तरक होंगे।
मदनी चैनल के नाजरीन, घरों में जानवर पालना बरकत के लिए है। मुर्ग पालने का भी हुक्म फरमाया गया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद मुर्ग पाला था। इस तरह फिर घोड़े पालना और ऊँट पालना, दीगर बकरियां पालना, ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। और बकरियां पालना तो बड़ी बरकत वाला काम है। घर में बरकत, यानी घर में अगर बकरी होगी इंशाअल्लाह उसकी बरकतें ज़ाहिर होंगी। बरकत कैसे ज़ाहिर होगी? ऐसा शरीफ जानवर है माशाल्लाह, घर में रहता है, चरता है, और फिर इसकी अफजाइश भी होती है। इसके जो बच्चे होते हैं बंदा सेल करता है, आगे बेचता है, कुर्बानी के मौके पर बेचता है, तो यूँ रोज़ी में बरकत का ज़रिया भी ये जानवर बनते हैं। लेकिन इन जानवरों का ख्याल रखना, इनकी देखभाल रखना और इनके मामलात में अल्लाह पाक से डरना, ये भी ज़रूरी है। बाज़ कात जानवरों पर लोग जुल्म करते हैं। जैसे कुर्बानी के जानवर होते हैं तो लोग जो जानवर पालते हैं तो आमतौर पर डायरेक्ट रस्सी डाल देते हैं, और रस्सी डाल के जब खींचा जाता है तो फिर जानवर को तकलीफ़ होती है। तो बेहतर तरीका ये कि चमड़े का जो पट्टा होता है वो गले में डाला जाए, उसको रस्सी डाल ली जाए। इस तरह जानवर को चढ़ाते हुए उतारते हुए इसका लिहाज रखा जाए कि जानवर को चोट ना लगे। अच्छा, घरों में जानवर पालते हैं जैसे बकरी है, गाय है, भैंस है, इस तरह के जानवर जो हैं ये मिट्टी वाली ज़मीन पर रहना पसंद करते हैं। तो इनको अगर आप अपने घरों में पालते हैं तो फिर इनको इनका माहौल प्रोवाइड करें, उस तरह का माहौल दें जिसमें ये लोग इजीली रह सकते हैं। मिट्टी का माहौल बना दें, नीचे मिट्टी डाल दें ताकि ये जानवर इजीली अपनी इस जगह पर रह सकें, क्योंकि शहरों में तो आमतौर पर टाइलें लगी होती हैं, पक्के फर्श होते हैं, तो मिट्टी वाली जगहों पर ये रहना पसंद करते हैं। अच्छा, इसी तरह नहाने के हवाले से जो भैंस है वो नहाना पसंद करती है, लेकिन गाय बछड़ा वगैरह ये कतराते हैं और ये कीचड़ वाली ज़मीन पर भी नहीं बैठते। तो इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एक खातून जो है वो इस वजह से जहन्नम में दाखिल हुई कि उन्होंने बिल्ली पाली थी और बिल्ली की वो हिफाजत नहीं करती थी, बिल्ली की खुराक का इंतज़ाम नहीं करती थी, जिसकी वजह से बिल्ली भूखी मर गई। इस गुनाह की वजह से वो जहन्नम में औरत डाली जाएगी। मदनी चैनल के नाजरीन, जानवर बिल्कुल पालने चाहिए, जानवरों का ख्याल भी रखना चाहिए। क्यों? इनके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ी में भी बरकत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह इनके ज़रिए बिज़नेस भी होता है। बजाय इसके कि लोगों के आगे हाथ फैलाएं, लोगों के आगे जाके भीख मांगें, इससे कई दर्जा बेहतर है कि आप जानवर पालने वाला काम कर लें। अल्लाह की रहमत से सुन्नत की नीयत से करेंगे, उस पर भी सवाब मिलेगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसमें अल्लाह पाक बरकत भी देगा। अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़े हलाल में बरकतें अता फरमाए और हमें जानवर जो पालने हैं, जो जानवर हैं जिनका पालना जायज़ है, बहुत सारी कई गैर शरई सूरतें भी होंगी, तो उसके हवाले से दारुल इफ्ता से रहनुमाई ले ली जाए। तो जानवर पालने की जो अजीम सुन्नत है उस पर भी माशाअल्लाह सुन्नत पर भी अमल करें, रिज़्क़े हलाल भी कमाएं। अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़े हलाल में खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन बिजाहिल नबी अल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब के ये हैं नेक बंदे, राज़ी रब को ये करे, देने वाला हाथ इनका काम जो भी ये करे। अल्लाह